یہ روسٹر کہاں پہ لکھا رہتا ہے؟ یہ سر یہ ڈاکٹر روسٹر ہے. اچھا یہ اس کا نائٹ کا سر. ٹھیک ہے یہ سر ڈے. لیکن اس میں میری السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اور سر آپ کا گڈ نیم، ہم ملے تھے ایک بار سر. ہاں ملے ہیں. تو پہلے روسٹر کا یہ ہمارا ہے، لیکن اس میں میری گزارش ہے اگر آپ اجازت دیں تو. ارے سر مت کہ میں آپ کا تابع دار ہوں. یہ روسٹر اگر تھوڑا رہتا نا وہ اس میں کنفیوژن ہو جائے گا. جو عام آدمی دیکھا اس کو پورا ایک ہفتے کا ایک نائٹ کا روسٹر اگر ہوگا جس میں جتنا بھی اسٹاف ہوگا ایک ہی ورقے میں آپ کو لکھنا ہے. وہ جب اتنا ڈھونڈتے تھک جائے گا ہے نا. اور دوسری ایک ریکویسٹ میری، ہاں کوئی نہیں. دوسرا اگر آپ کو مناسب لگے، یہ میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، کوئی کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں. تو نیچے اگر آپ نے ایسے روسٹر بنایا ایسے ہی ڈیلی بھی آپ بنا سکتے ہیں، ہفتے کا بنا سکتے ہیں. نیچے آپ یہ لکھیں میں اپنا پرسنل نمبر دینا چاہوں گا. سنیے نا سر، اگر کسی کو کوئی انکنوینئنس ہو تو وہ ہمیں رابطہ کر سکتے. ڈائریکٹ میں اپنا نمبر دوں گا، یہ عام آدمی کے لیے ہوگا، ہے نا سر. ادھر میرا نمبر رہے گا، کیونکہ اگر رات کو اگر ڈاکٹروں کو بھی کوئی پریشانی ہوگی کبھی تو ہم انشاءاللہ اٹھا لیں گے فون ان کا. اور اگر پیشنٹ کو ہوگی تو یہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. تھوڑا اسے سسٹم سٹریم لائن ہو جائے گا، کیونکہ دور دراز علاقہ ہے، کیا کریں گے لوگ بیچارے. اچھا دوسرا مجھے یہ کہہ رہے تھے ادھر ایک آئیڈیا مجھے آیا تھا کہ مطلب جو آپ کے ایسے ایریاز ہیں جو کٹ آف رہتے ہیں سردیوں میں بھی، جو وہاں پہ اگر ہماری کسی ماں بہن کی ڈلیوری ہو تو برف زیادہ پڑے، اس کو پھر کیسے یہاں لایا جائے؟ اس وقت سر ایسا کرتے ہیں ہم ایک ان کی لسٹ نکالتے ہیں ہاں جو نومبر سے لے کر مارچ تک جس کی بھی EDD ہوتی ہے ہاں اس کو ہم ادھر پھر شفٹ ہونے کو کہتے ہیں، ہاں یہاں پہ ہم اس کو ایڈمٹ رکھتے ہیں. بالکل. اور ہم نے ادھر ایک برتھ ویٹنگ روم بھی رکھا ہوا ہے. اچھا اس میں بھی ہم رکھتے نہیں، اس میں آپ کی اکاموڈیشن اتنی آئے گی مطلب اگر 10-15؟ ہمیں ہاسپٹل میں ہے اکاموڈیشن زیادہ، اس میں کم ہے، لیکن ہاسپٹل میں ہم رکھتے ہیں. اور اس کے لیے اگر وہ آپ کو جتنا ٹائم رکھنا پڑیں گے اس کے لیے ہم بھی کچھ ڈونیٹ کریں گے تاکہ ان کے کھانے پینے کا باقی چیزوں کا جو بھی ہوگا مل جل کے کم سے کم، کیونکہ اگر برف کی وجہ سے کوئی آ نہیں پایا تو ٹریجڈی ہو جائے گی. ہاں شکریہ سر. تو ایشوز کیا ہے ہمارے یہاں پر؟ سر یہاں مین ایشو جو ہے وہ سٹاف کا ہے. ادھر سے آگے سے تھوڑا سا. ہاں سٹاف کے بغیر ہمیں اور کوئی مین ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ صرف کلینکل 3 ڈاکٹر ہیں، ایک ریگولر ہے اور 2 انرچم میں یہاں کام کر رہے ہیں. اور پھر 3 ڈاکٹر فیلڈ، 2 ڈاکٹر فیلڈ میں ہیں جو فیلڈ میں RBS کے میں کام کرتے ہیں، اور چھٹا میں ہوں یہاں پہ. تو اسپیشلسٹ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے ایکسیپٹ بھی میں گائنیکالوجسٹ بھی ہیں. تو گائنیکالوجسٹ کون ہے؟ میں گائنیکالوجسٹ میں خود لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے؟ نہیں لیڈی ڈاکٹر ہے لیکن گائنیکالوجسٹ نہیں ہے. اچھا تو اسٹریم ڈفرینٹ ہوتی ہے نا وہ. ہاں میں سمجھ گیا. وہ تو اب ٹرائنام سے یہاں یہ موبائل آپ لے. اچھا کس وجہ سے؟ تو اچھا یہ اور ہمیں سر پیرامیڈیکل بھی کافی ڈفیکلٹی ہے یہاں پہ، تو ہم اچھا جو آپ نہیں کر سکتے ہیں. جو NRH والے اپنے یہاں پر ہیں، ایک پرسپشن باہر یہ ہے کہ یہ یہاں ہی اپوائنٹ ہوئے یہاں کی پوسٹوں کے اگینسٹ، لیکن جو انہوں نے ذرا فون دے لیا تو جو ایک پرسپشن ہے کہ یہ یہاں ہی اپوائنٹ ہوئے ہیں اس لیے ان کو یہاں ہی ڈیوٹی دینی ہے. ایسا صحیح ہے کہ مطلب روٹیشن ایسے ہونا چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ سر اصل میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. اب NHM کا یہ ہوا ہے جہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی پھر وہاں پہ ان کی کوئی ٹرانسفر پالیسی ہے نہیں. صحیح بات. پھر یہ وہاں پہ رہتے ہیں جب تک نہ ان کی ٹرانسفر پالیسی ہو جائے. ٹھیک. اچھا دوسرا مجھے جب ٹرانسفر پالیسی ہو جائے گی تو تب یہ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں جا سکتے. اچھا سر یہ مجھے بتائیں، یہ الٹرا ساؤنڈ تو ہوتا ہے ہمیں یہاں؟ سر ہمیں سونالوجسٹ نہیں ہے. الٹرا سونوگرافی مشین ہے، ریڈیولوجسٹ بھی نہیں ہے. سونالوجسٹ نہیں ہے سر. پھر ہفتے میں کتنی بار ہوتا ہے؟ سر جب سونالوجسٹ نہیں ہے اب ہم تھوڑا بہت زر نکالتے ہیں. ہاں میں وہی کہتا ہمارا ہوں. ایک ڈاکٹر ایک ہے وہ اصل میں فیلڈ کا ڈاکٹر ہے RBS کی. مطلب اب تھوڑا بہت وہ الگ ایتھرائزڈ نہیں ہے، مطلب گورنمنٹ میں سمجھ گیا وہ ایتھرائزڈ نہیں ہے. اب ہم یہاں دور دراز کا علاقہ ہے، اب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اس سے کہ تھوڑا ہمیں ہیلپ کر دو. تو ڈائریکٹر صاحب کا فون بند آ رہا ہے، لیکن میں انشاءاللہ کرا دوں گا یہ ساری چیزیں جتنا ہمارے تک ہے. تو ایک مطلب مشین ہے لیکن ریڈیولوجسٹ نہیں ہے. نہیں سر. تو ہفتے میں کتنی بار آپ کرتے ہیں؟ ہم ویسے ڈیلی کرواتے ہیں یہاں پہ. پہلے وہ فیلڈ جاتا ہے ادھر سے پھر آتا ہے تو ہم ڈیلی تھوڑا بہت کرواتے رہتے ہیں. ہاں لیکن ہے ٹیکنیکلی غلط ہی ہے. اچھا سرجری کا کیا حال ہے؟ جنرل سرجن سر ہمارے پاس نہیں ہے.
सिर्फ गायनी की सर्जरी होती है जो मैं ये सर्जन है कि मशीनरी नहीं है? नहीं सर्जन नहीं है सर, मशीनरी सब है हमारे पास, मशीनरी है, सब। हमें मशीनरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात। जहाँ पे CHC का ताल्लुक है उसके हिसाब से हमारे पास मशीनरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मशीनरी है। ब्लड बैंक हमें ब्लीडिंग यूनिट नहीं है, लेकिन हमें स्टोरेज यूनिट अप्रूव हो गया है, स्टोरेज यूनिट हमें है। अच्छा। और हम ब्लड जो है वो कुपवारा से लाते हैं, तो वो स्टोरेज यूनिट अप्रूव हुआ है? स्टोरेज यूनिट अप्रूव है with गुड। license। तो फिर अभी लग किधर है? नहीं हम लाते हैं, अच्छा। लाते हैं जब तो और कोई डिफिकल्टी? एक तो हुआ स्टाफ का, कुछ और? स्टाफ की, एक स्टाफ की बेड कितने हमारे हैं? 30 हैं। एक मिनट, एक हमें स्टाफ की प्रॉब्लम है, दूसरी हमें कैंटीन की प्रॉब्लम एक सेकंड थोड़ा। है। ये दो प्रॉब्लम। ए रमजान साहब सलाम अलैकुम। ओ जनाब ठीक से बस। ए डायरेक्टर साहब फोन इमा बंद मगर बस करना ये टंग डार जनाब दी आख मत में चित्रकूट अपो कि यू हैव टू गिव हियर एडिशनल स्टाफ यम इलाक बिचार कट ऑफ कम अज कम ये रोजन प्रॉब्लम ज्यादा कह तम बिचार कत वात नंबर अख नंबर जो वन में मेन हॉस्टल ये हेड ये BMO साहब ती जनाब अली अख गायनोकोलॉजिस्ट कहीं तो मगर ना मे पाई कह अहन वन वन एनेस्थीसिया कि मशीनरी सारी अगर सर्जन बूझो 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 सर्जन एनेस्थीसिया कस गई तो गायनोकोलॉजिस्ट गई 3 बे फिजिशियन गई 4 चाहे किसी सुबह ना बन आबिद साहब शायद सर्जरी पानस बिचार सामस कमिश्नर साहबस तो यहाँ कुन पे जनाब अली 4 पोस्ट दी तो मे कुन पे कर बे रेडियोलॉजिस्ट हाँ सर हाँ ठीक कह प्रॉब्लम यस लेट इट बी सो तो क्या थो उम्मीद कूत काला लगे लगभग तोतान शीन पेमुत पे कुछ पे बिचार शीन ब्रो अहन ना सह कर कमिश्नर साहब सत कत जनाब तम पानस आमत सर्जरी मे ओतर ऑलरेडी तक तुलमुत ओतर मीटिंग कर ना हुई तमस जब आप ऑनलाइन थे तो मैंने उस वक्त भी कमिश्नर साहब की नोट्स में लाया कि हमें वहाँ पर मतलब बच्चों के लिए डॉक्टर भी चाहिए और 800 800 है अब 800 लगी थी बगैर पहाड़ मज नफर पैक तमिस गुरत इन सोरे पान शहर मज कत 800 बगैर तस क्या लगे किन से पूछा अहन यह थो नोट कर प्लीज अच्छा एम्बुलेंस क्या हाल एम्बुलेंस चलो हाँ दमा ठीक ए गोडनिक जाए ये शुक्र गुजार दमा एम्बुलेंस चलो हाँ लेकिन दमा एम्बुलेंस मगर ड्राइवर दमा जहाज पायलट कहीं टीटवाल के लिए नहीं है, बाकी हमें यहाँ हाँ टीटवाल नहीं टीटवाल का भी होता है ना वो के लिए है नहीं ड्राइवर। अच्छा दमा टीटवाल ड्राइवर कह प्लीज टीटवाल ना यह नोट परवाह मगर यह गो चक्कर गए जाय गन कह काइंडली शुक्रिया 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 थैंक यू सर थैंक यू शुक्रिया। तो अच्छी बात। अच्छा बेड कितने हमारे पास हैं यहाँ? 30। तो नॉर्मली कितना रहता है रात को? हमारा रात को सर OPD ज्यादा रहता है। कितने अलावा? 100 से ज्यादा रात को OPD होता है हर दिन डेली। नहीं रात को? यस सर। एडमिट कितने रहते हैं? एडमिट हमारे 10 से 20 रहते हैं। मतलब उतनी कैपेसिटी है सर है हमें। दूसरा ये टोटल OPD दिन का कितना होता है लगभग? टोटल OPD हमारा वेरी करता है 200 to 300 डेली। 200 300 वेरी करता है। हाँ लाख कभी ज्यादा हो जाता टीटवाल में अपना वहाँ CHC है या? नहीं सर टीटवाल में हमारा PHC है। PHC लेकिन वहाँ हमें स्टाफ नहीं है। आगे सब फार्म स्टे क्या हमें बस। आप BMO भी काम कर रहे हैं? सर मैं BMO हाँ वही मैं अभी आप मीटिंग में आएंगे ना वहाँ? सर मैं आ रहा हूँ। हाँ जी जो भी टीटवाल का या बाकी सब सेंटर्स का है आप अपनी डिमांड दे रहे हैं देखते हैं हम यहाँ के लिए हाँ बताएं कुछ और आपको तो नहीं कहना पब्लिक ग्रीवेंस बताइए ना जनाब आप बताएं। इसका एक्चुअल में सर यहाँ पे इससे पहले भी इन 5 सालों में डायरेक्टर साहिबान भी आए, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स भी आए, सही कुछ भी नहीं होने वाला। आपका गुड नाम? मेरा नाम राजा बकार है सर। अच्छा हाँ समझ गया मैं तो यहाँ का मामला ये है सर, यहाँ जब तक इस हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन नहीं होगी तब तक ये अमला आने वाला नहीं है। हम लोगों ने डायरेक्टर साहब से भी बात की, सेक्रेटरी साहब से भी बात की, CMO साहब से, तो हमारा रोज का यही ड्रामा रहता है कि आप हमें एनेस्थीसिया
डॉक्टर यहाँ पे भेजो। कुछ नहीं सर, यहाँ पे कोई नहीं, ना इन लोगों की तरफ कोई हमदर्द यहाँ पे आने वाला है ना कुछ। अभी आप चले जाएंगे, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपकी वजह से हो जाए, MP हैं आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के, इस कंस्टिट्यूंसी के, वो अलग बात है सर। यहाँ पे अगर 20 पेशेंट हैं सर, 20 पेशेंट इसलिए हैं, यहाँ पे मजदूर शख्स भी जमा पूंजी करके अपने पेट काट कर, उसे मालूम है मुझे कम मिनिमम 10,000 रुपये अपने अकाउंट में रखना है कि घर में कोई सी बीमारी होती है उसे श्रीनगर का रुख अख्तियार करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ के ये बेड खाली है। अगर वहां बंद हो जाए, खुदा की कसम खा के कहता हूँ सर, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास यहाँ पे एक्सरे का एक सेंटर 3 साल हो गए खुला है, गबरा में, टीटवाल में, नॉन फंक्शनल है, पैरामेडिकल स्टाफ है ही नहीं। NRHM के तहत जो यहाँ पे डॉक्टर्स लगे हुए हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। 10 साल 20 साल हो गए हैं। मैं अब इस हक में नहीं कि इनको भी लेके चलो, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे जब तक ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो नहीं बनेगी, ये लोग आना पसंद नहीं करते। और डॉक्टर्स की जो यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, उनका असर रसूख आपसे हमसे बहुत ऊंचा है सर। वो साधना की हवा जो है वो भी नहीं लगती। उनके ऑर्डर होते हैं, 8-10 महीने वो सैलरी निकालते हैं, 10 महीने के बाद वो उनका ट्रांसफर ऑर्डर आता है और हम लोग उल्लू बन के इस तरह देखते हैं कि कहां से कब ये लोग आए, कहां गए, कहां। हमारा तो इलाज ही नहीं हुआ सर। दूसरी बात है कि अपग्रेडेशन का सर, खुदा की कसम हम लोग लाचार हैं। 1 लाख पे यही एक चीज है। आप टीटवाल की गबरा की बात करते, वहां पे है ही नहीं हमारे पास। जब स्टाफ ही नहीं है तो उनको हम क्यों काउंट करें? अभी तक ये CIC सेंटर है सर। अपग्रेडेशन यही हल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार डायरेक्टर साहब जब यहाँ पे आए, मैंने मीटिंग में उनको कहा था सर, अगर आपसे हो सकता है तो प्लीज सर बता के जाएं, अदरवाइज हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ होता है। उन्होंने उस टाइम यही कहा कि जब तक आपकी हॉस्पिटल अपग्रेड नहीं होगी जनाब, मैं आपको अपनी बरादरी तौर पे ये बता के जा सकता हूँ कि 1-2 डॉक्टर भेज दूंगा, अदरवाइज डॉक्टर आपको नहीं आ सकते। बाकी जो अमला काम कर रहा है, हमें इनसे कोई, मैं कहता हूँ ये भी चले जाएंगे तो हम कहाँ के रहेंगे। मैं कुछ अर्ज करूँ? जी सर। अगर आप इजाज़त दें, जो आपने फरमाया बिल्कुल बचा फरमाया। पहले जहाँ तक आपने कहा कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी और यहाँ से उठ के अपने अप्रोच पे बिल्कुल जाके जाता है, इस वक्त कोई ऐसे कुछ मतलब कोई स्टाफ है जिनकी सैलरी यहाँ से निकलती है, जिनकी ड्यूटी है लेकिन कहीं और है? हमें सर एक डॉक्टर था यहाँ आया हुआ था और उसको फिर वो अदर ड्यू पे चला गया। जब तक उसकी अदर ड्यू थी उस वक्त तक हमने सैलरी इस वक्त की बात बता नहीं, इस वक्त हम किसी की सैलरी जा सकते पैरामेडिकल स्टाफ कोई ना किसी की हो गया, एक ही है। दूसरे पहले थे, चलिए आप पहले था, दूसरा और बात कोई नहीं। जो आपने सर्जन की बात की, फिजिशियन की बात की, ये गायनी लीड डॉक्टर की बात की, गायनोकोलॉजिस्ट की और रेडियोलॉजिस्ट की, ये इंशाल्लाह किसी भी तरह से हम कोशिश करेंगे कि आगे, क्योंकि स्टाफ की ओवरऑल हर जगह कमी है जगह में, ये आप मानते हैं। लेकिन करना गुरेज मसल इन जगहों की बात ही कुछ अलग है, यहाँ तो होना नहीं चाहिए। नहीं रशीद साहब, यहाँ पे सिर्फ अब सर्दियाँ आ गई हैं। मुझे पता है कि वो घड़ी की टिकटिकी जो है उनकी, वो किस तरह से वो जो लोग अंदर बैठे हैं। वही मेरी गुजारिश आप सुनिए। फिर जो आपने अपग्रेडेशन की बात की, अपग्रेडेशन इस वक्त हमारा क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट है कौन सा? हाँ, CIC सेंटर है सर। तो अपग्रेड नहीं, CIC अब आप उसके बाद अपग्रेडेशन में क्या चाहते हैं? सब डिस्ट्रिक्ट कम से कम इसमें सब डिस्ट्रिक्ट बेड इंक्रीज होना जो लगाया इन्होंने, आप कहें कि नहीं, जो बोर्ड लगा है कागजों में सब डिस्ट्रिक्ट है या CIC है? सर ये अब ये SDH है। अलबत्ता एक चीज़ है, हमें देखिए बात असल ये है, वकार साहब ने ठीक कहा, हमें 18 पोस्ट है डॉक्टर की CIC। अगर 18 पोस्ट में से 15 फिल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। मगर मामला ये है कि स्टाफ नहीं है, समझ गया मैं। हमारे पास 18। अच्छा, जो हमने पिछली बार मीटिंग ले ली सेक्रेटरीट में, ये आपके CMO साहब भी वहाँ थे, ये ऑनलाइन थे, तो हमने भी नहीं कहा कि यहाँ पर कम से कम कैपेसिटी बढ़ाएं। मतलब जो आपने 30 बेड कहा, इसमें भी बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली स्टाफ भी बढ़ेगा, कम से कम नॉमेनक्लेचर में चेंज नहीं करें, ऐसा मुझे बताया आप। एक हुआ नहीं, ये 2 बातें मुख्तलिफ हैं। अगर कागजों में सब डिस्ट्रिक्ट है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। 1 लाख आबादी है और यही मैं चाहता हूँ कि यहाँ का गरीब गुरबा जो है, जो छोटी सी बीमारी को लेकर के वो मैं वही कह रहा हूँ, मतलब उसके लिए मेडिकली इनको मालूम होगा डिपार्टमेंट अपग्रेडेशन इसमें है, इसमें बेड इंक्रीज। हाँ, वही मैं कहता हूँ, बेड इंक्रीज होते हैं उसमें डॉक्टर सर पोस्टें क्रिएट होती हैं। विकार साहब मैं वही कह रहा हूँ, प्लीज आप मेरी गुजारिश सुन लीजिए। 2 अलग अलग चीजें हैं, फिर मैं वही बार बार रिपीट करूंगा। एक हुआ इसका स्टेटस
अगर सब डिस्ट्रिक्ट है, सुनिए ना, आप हमें इसमें अपग्रेडेशन करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। दूसरा कि अगर ये CIC है या उससे नीचे का है तो फिर पहले इसका स्टेटस चेंज करना है। स्टेटस चेंज हुआ है लेकिन अपग्रेडेशन करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैं समझ गया, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि जिस भी लेवल पे जितना हमसे हो सके इसके लिए जो कुछ भी चीज़ करनी पड़े वो हम इंशाल्लाह रहमान करेंगे अल्लाह के फजल करम से। जैसे आपके टनल के लिए लगे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह। हाँ बताएं बताएं। हाँ आपने ये बात बताई, ये टेक्निकल पॉइंट बताया, मुझे तो खुद नहीं पता, मैं क्या बता दूँ आपको, उसमें क्या फ़र्क है? सर स्टाफ का फर्क है। नहीं, जो A और B में करें। हाँ एक मिनट हाँ अभी देखिए, अगर हम CT स्कैन का वो करेंगे तो हमारा काम नहीं हुआ ना सर। सबसे पहले हमें चाहिए जैसे पेडियाट्रिक पोस्ट करिए, CT स्कैन नहीं हो गया है। जब स्टाफ ही नहीं है तो खाना क्या? स्कैन करेंगे क्या? सही बात है, मैं वही कह रहा सबसे हूँ। पहले हमें चाहिए स्टाफ। जब स्टाफ हमें हो जाएगा, रेडियोलॉजिस्ट हो जाएगा, CT स्कैन का कोई मुश्किल बात तो नहीं है, वो तो आदमी महीने में लाएगा। जब स्टाफ ही नहीं है, अब जैसे ये फरमाया वकार साहब ने, जैसे इस वक्त हमारे एक्सरे प्लांट इसी तरह पड़े हुए हैं, जब वो नहीं चल रहे तो CT स्कैन चलिए रेडियोलॉजिस्ट का इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा और वाल फिटिंग भी करवा देंगे। बड़ी बात है। तो बाकी इसके अलावा जो आपका मतलब बेड्स का इंक्रीज करने का है, ज़मीन तो है ना अवेलेबल? हाँ देखते हैं इंशाल्लाह करवा देंगे। उसकी वजह से ये रोटेशन बेस पे अगर डॉक्टर यहाँ देखें, यहाँ की टॉपोग्राफी हाँ मैं समझ, हाँ अलग है, सारा कुछ अलग है सब कुछ बिल्कुल। अलग है। ये वही इम्प्लीमेंट करते हैं श्रीनगर, दिल्ली में वही इम्प्लीमेंट। कोई और ऐसी इमरजेंसी चीज़ जो है आपको चाहिए? कितने का आता है वो? सर डायलिसिस जो है हमने RO प्लांट ऑलरेडी हमने कर लिया है। अब मशीन्स है, वो मशीन्स का हमने डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है। कितने में आती है मशीन? लगभग स्टार्टिंग रेट जो है वो 11 लाख है, ठीक, तो उससे ऊपर आती है। 11 से ज़्यादा ऊपर मतलब अच्छी क्वालिटी वाला जो यहाँ पर 15 लाख 15 से 20 तक आ जाए। यहाँ पे लगभग 70 पेशेंट है जो सर पिछले 2 साल डायलिसिस। कोई नहीं, एक मिनट एक काम मैं करता हूँ, उतना पैसा मैं अपने इस MP फंड से आज ही देता हूँ। नहीं ये मत करो यार प्लीज, बता भाई। अरे नहीं ये गलत है, बता कर रखना, कल हमें प्रॉब्लम नहीं आनी, फिर आप बोलेंगे कि हमें कुछ नहीं है इधर। कोई नहीं एक मिनट। अरे उन्होंने सर मैंने सब पता है, ये तो प्रोफेशनल है सर। फारूक साहब एक मिनट, एक स्टाफ का आप देखिए, मैं भी आपकी तरह एक मतलब आप में से एक हूँ। मेरा काम एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर सरकार तक आपकी बात लेना और उनसे लेना है स्टाफ, वो मैं ले लूंगा। जितना आपने 10 मांगे 5 मांगे, मैं 5 तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। और जो डायलिसिस की मशीनरी का ताल्लुक है, इसमें जितना भी पैसा लगेगा सबसे बढ़िया और बेस्ट डायलिसिस मशीन मैं अभी मीटिंग में ही आपको लेटर दे दूंगा, आपका डिपार्टमेंट प्रोक्योर करेगा, फिर आपका काम जितना जल्दी हो सके आप लगा दें, ठीक है ना सर? अरे किस बात के लिए चीज है यहाँ पे ये बात करनी साधना का सर। हाँ साधना का मसला वहाँ पे एक खामोश आप। हाँ व्हीकल स्कैनर का मसला सर। एक मिनट जरा भैया, अब हमें उतनी बर्दाश्त नहीं है कि हम वहाँ पे लोग। अब मेरी भी गुजारिश सुन लें, अगर आप सारे भाई सुनेंगे तो देखिए मैं तो आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरा काम है आपके मसाइल आपकी बातें यहाँ से आगे ले जाना। मैंने आर्मी के ऊपर के एहलकारों से भी बात की, श्रीनगर में जो बैठे हैं, बाकी जगहों में जो बैठे हैं, क्योंकि हमें लोगों का काम करना है, हम सिस्टम में काम करना है, हमें लोगों की बात पहुँचानी है। ये श्रीनगर वाला, सोपोर वाला, लंगेट वाला क्या जानेगा करना वाले की मुसीबत क्या है, गुरेस वाले की मुसीबत क्या है। जितनी तारें यहाँ बिछी है ना, वो तो उतनी अगर हमारे में होंगे तो उससे पूरे 100 किलोमीटर की बिजली चलेगी। लिहाजा आज हम कमांडर साहब से भी मिले तो उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था। उनको अपने दूसरे साथियों ने भी कहा था, उसमें सिकंदर का जहाँ तक ताल्लुक है, सिकंदर 100 करोड़ रुपए से ऊपर का आता है उसकी मशीनरी जो है। लेकिन सरकार ने जो मुझे अंदर से पता है, जवाहर टनल पर इधर साधना क्या बोलते हैं इसे, जवाहर टनल, राजदान टॉप और इन जगहों पर वो सोच रहे हैं कि ऐसी मतलब क्या कहते हैं मतलब ये मशीनें लगाई जाएं। उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तब तक हमने कुछ तजवीज़ें इनको दी हैं कि एक कमांडर साहब भी कोऑपरेटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कोऑपरेटिव है, कोशिश करेंगे कि एक सर्चिंग जो है मतलब वहाँ पर एवलांच का भी खतरा रहता है, थोड़ा उसको नीचे कहीं शिफ्ट करें ताकि अगर कहीं पर कोई एवलांच आए कुछ आ जाए तो लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो और उसके प्रोसेस को थोड़ा ईज आउट कराया जाए। इसी तरह अंदर जो कहीं जगहों पर रोड्स बंद थे, मतलब जहाँ आप आराम से किसी जगह झपड़ा से किसी जगह से
मतलब लिंक रोड से जो बंद है, जहाँ फौज की कुछ अपनी परेशानी थी, वो भी ये ईज आउट कर रहे हैं। जितना इन तक है, हाँ बलथड़िया में, बाकी जगहों पर वो इंशाल्लाह ईज आउट करेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है, जो चीज़ें यहाँ इन्होंने वैसे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, जो लोकल कमांडर है, अगर इनसे हल नहीं होता है हम इनके ऊपर वालों तक ले जाएंगे, लेकिन इन्होंने भी बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। ये हमारा फर्ज है। और फिर जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी कॉपरेट करे। और एक चीज़ आपसे मैं चाहूँगा, कहूँ कि ना कहूँ, नहीं सारे जब कहेंगे, सारा कुछ एक तरफ छोड़िए, सियासत सब कुछ। अब तो इलेक्शन खत्म 5 साल के लिए, अब डेवलपमेंट करनी है, लोगों के मुद्दों की बात करनी है। मेरा यही, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नज़दीक मेरा यही मिशन है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे चाहूँगा, कहूँ कि ना कहूँ, डर लग रहा है कहने में। नहीं सर, हम बस मैं सुनिए ना, मैं एक चीज़ ये है, कभी कभी हमको भी नजर रखने की, अगर चाहे एक ही बंदा है सारे इलाके की बदनामी कर रहा है, ड्रग्स के खिलाफ हमें लड़ना है। जो कोई भी लाता है ना, जो कोई भी लाएगा, जो कोई भी पकड़ा जाएगा ड्रग में, उसके साथ सोशल बाइकाट करें, उसके साथ ना उसका रिश्ता दें ना रिश्ता लें। ये मेरी तजवीज़ है। वो एक हाँ, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी मैं कल कॉलेज में भी जा रहा हूँ, जो बाकी इशूज है भी, हमारा रिव्यू मीटिंग आप भी आए, तो जो भी सिविल सोसाइटी के लोग 2-4 बंदे आए, वहाँ भी बाकी इशू उठा लेंगे, क्योंकि जब मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मुझे पूरे इलाके की बात करनी है। और दूसरी बात, कॉलेज के इशूज़ हैं, रोड्स के इशू हैं, बाकी इशूज़ हैं, बिजली के कुछ इशूज़ हैं, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सर। बताएं, देखा आराम से बताएं। अभी मीटिंग में बात करें, मीटिंग में बात करें, आए कल बात मीटिंग में। हाँ हो जाएगा। रईस साहब, सर